We are here in Bharat Parv, Kevadia, Ekta Nagar for the celebration of Ek Bharat, Fest to Bharat, which is being celebrated from 1st to 15th November. Bharat Parv 2025 is a vibrant celebration of India's unity in diversity, fittingly held during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India whose vision and resolve unified the nation. The majestic Statue of Unity, standing tall as a monumental tribute to his legacy, lends profound meaning and grandeur to the celebrations. The kaleidoscopic hues of India's rich cultural heritage come alive in one magnificent setting at Bharat Parv 2025, offering visitors a vibrant journey through the heart and soul of the nation. Bharat Parv 2025 has been organized by the Ministry of Tourism, Government of India in collaboration with the Government of Gujarat. The festival is hosted near the Statue of Unity complex in Ekta Nagar, Kevadia, with support from the Gujarat Tourism Department and the Statue of Unity Area Development and Tourism Governance Authority. Inside the Bharat Darshan Pavilion, the Indian states and union territories present a captivating blend of tourism information and immersive storytelling brought to life through cutting edge digital technologies. Visitors can explore destinations through state of the art augmented reality AR and virtual reality VR experiences, offering an engaging glimpse into the diverse wonders of India. This is a wonderful platform for showcasing India's unity in diversity. All the state governments, almost 25 of the state governments from across the country, have come here to display their tourism products to the discerning travelers. Apart from the tourism pavilions, we also have food courts wherein we have engaged NASPI, the Street Food Association, for coming and showcasing the food cuisines from across the country. And also we had a studio kitchen where all the state governments with their pairing states came and showcased the cuisines, the gastronomy of India every day from 1st to 15th November. So this is a very good platform for the state governments and the government of India, the Ministry of Tourism, along with other ministries, for organizing this Bharat Parv, where all the visitors here get to get a glimpse of India in one place. So I'm sure the success of Bharat Parv in Kevadia will continue in the coming years, and all the travelers who come to discover
the world largest statue, the world tallest statue, which is 183 meters and around 6,000 feet. Uh, Along with this, other attractions in and around Kevadia, Ekta Nagar. I'm sure this is a wonderful, platform and a very beautiful destinations. And this is a model destination for India. And I'm sure all the governments, all the tourism departments in India will come and explore this model for implementing some of the success stories that are there in Kevadia in their own state. आरती दत्ता फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग ने यहाँ भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया है जो 1 to 15 नवंबर ऑर्गेनाइज हुआ है। वो गुजरात टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हुआ है। यहाँ पे हमने थीम पैवेलियन है जहाँ पे 25 स्टेट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यूनियन टेरिटरीज भी आए हैं और उसके साथ साथ वो अपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। AR VR हो रहा है, अब उनके स्टेट की जानकारी दी जा रही है इधर। साथ साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात ने स्टूडियो किचन भी क्रिएट किया है जहाँ पे एवरी डे एज पर द एक भारत श्रेष्ठ भारत पेयरिंग हम लोग क्विजीन दिखाते हैं। तो स्टूडियो किचन में शेफ हमें क्विजीन प्रिपेयर करते हैं, वो देखते हैं एंड फिर हम लोग शाम को वो टेस्ट भी होते हैं लेटर इन द डे। सो हियर एट वन प्लेस यू कैन टेस्ट क्यूजीन, पूरे इंडिया का क्यूजीन हम एक जगह पे देख सकते हैं। सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज के काउंटर्स लगाए हैं जहाँ पे हम वहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स सारे स्टेट के यहाँ पे हो रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे लोग आके देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स। एंड देन ऑल्सो इन द एंड ऑफ द डे वी हैव अरेंज्ड कल्चरल प्रोग्राम ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। सो एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट पेयरिंग हो रही है, तो उस हिसाब से कल्चरल परफॉर्मेंसेस उस स्टेट का शोकेस होता है। सो ऑल इन वन डेस्टिनेशन हम पूरे टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट को शोकेस करना चाह रहे हैं थ्रू दिस भारत पर्व, भारत दर्शन इवेंट। मेरा नाम दीपंकर महापात्र है। मैं डायरेक्टर टूरिज्म हूँ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का। यहाँ पे जो भारत पर्व में बहुत सारे स्टेट्स का जो अपना टूरिज्म के बारे में अपना स्टेट जो किए हैं सब शोकेस कर रहे हैं। ये एक बढ़िया जगह है जहाँ पे अपनी जो हुनर जो बेस्ट चीज़ शोकेस करने का, इसमें उड़ीसा भी पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे अपने स्टेट की तरफ से मैं सब देशवासियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उड़ीसा भी आइए देखने के लिए। उड़ीसा को बोला जाता है ना द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें, मंदिर है, बीचेस है, इसके अलावा हिल स्टेशंस भी है। सबसे अच्छा महीना जो उड़ीसा में होता है जो अक्टूबर से लेके फरवरी एंड या मार्च 15 तक यहाँ पे घूमने लायक जो क्लाइमेट होता है उड़ीसा का बहुत अच्छा है। इसके अलावा मानसून में भी जो हमारा कोरापुट है और जो मयूरभंज, केवंझर, जो सातकोशिया, उधर भी बारिश के टाइम में यू कैन ऑल्सो कम टू दिस स्टेट एंजॉय रेनी सीजन ओवर हियर आल्सो। मेरा नाम है मनोज और मैं अभी उत्तर प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो हमारी थीम लग बनाई हुई है वो अभी है ओल्डेस्ट सिटी काशी विश्वनाथ के बारे में। काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर ही ये पूरा अभी हमने पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ आइए, उत्तर प्रदेश देखिए। अच्छा, तो रेस्पॉन्स कैसा है आपको ये पेविलियन पे? पेविलियन पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें पब्लिक का। पब्लिक बोल रही है आके घूमना चाहते हैं और काफी सारे लोग घूम के चले भी गए मगर फिर भी वापस आना पसंद करते हैं। My name is J. Somasundaram. I am working in Pondicherry Tourism Department as a tourism information officer. So we are coming here for Bharat Parv for 150th birthday of Sardar Vallabhbhai Patel. So we are putting our banners, our Pondicherry Pavilion. Pondicherry famous for spiritual and heritage
and coastal. In Pondicherry, they need 3 days tour. One is spiritual tour. We have here Purana ancient temples. We have Vedaburishwara temple, Gangai Varaga Nadishwara temple, Manakula Vinayaka temple. So many temples we have. Then we have churches, Asia's 50th Basilica. We have mosque. Everything is up. Then we have a heritage walk. 350 years old French buildings are available. So we have coastal line also. We have 8 beaches. That is only one beach. Eden Beach is the international blue. नमस्कार जी, मैं विक्रम चौहान हिमाचल टूरिज्म से, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक जो आप एकता का संदेश लेके चले हुए हैं, उसका ही एक पार्ट है भारत दर्शन, जिसमें कि विभिन्न प्रदेशों के लगभग सभी प्रदेशों के एक अलग अलग देखने को कल्चर मिल रहा है, टूरिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एकता का संदेश यहाँ से, जो हमारे सरदार पटेल जी की भूमि है, यहाँ से पूरे इंडिया में एक एकता का संदेश जा रहा है। नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे सरदार वल्लभ जी ने जो एक एकता का वो देखा था सपना, वो साकार हो रहा है। साथ में हमारे पीएम मोदी जी भी जो इस कार्य के लिए प्रयासरत है, उनका भी सपना पूरा हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, और हम यही कहेंगे कि जो भी आए एकता का प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी जरूर देखें। हाय, मेरा नाम अमन है। मैं आज मुझे मौका मिला है कि मैं झारखंड पर्यटन की ओर से इस भारत पर्व में मिलकर, जो हमारा मेन मिशन है कि हम सारी जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी एकता को दिखा पाएँ। इसी तरीके से हम अपने झारखंड की कल्चर को कर रहे हैं। हमारा जो अभी ये वीडियो चल रहा है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा झारखंड जो स्टेट है उसकी 40% मिनरल्स जो है पूरे देश में सर्कुलेट होती हैं। तो उसके लिए हमने माइनिंग टूरिज्म को भी स्टार्ट किया है, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। सो वी आर द फर्स्ट स्टेट व्हिच has started mining tourism. Apart from that, the thing that we have, I can show it to you over here, that all the circuits, we have prepared all the circuits that has been circulated over here. You can see Santhal Prangana. We are famous for this, the tribal one. So we have created one circuit. This is Santhal Prangana, Ranchi, especially for that. Maluti Temple, the historical site. Like that, we have created a specific of the special sites. Apart from that, हम ट्राइबल्स को प्रमोट करने के लिए 150वां दिवस जो हमारा बिरसा मुंडा जी का 150वां दिवस होगा 15 दिसंबर, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे। जय हिंद। मेरा नाम रमन यादव है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे गुजरात में ये वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे आया हूँ, और यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं बिहार के आइटम सारे बेचता हूँ, जैसे कि लिट्टी चोखा हो गया, लौंग लत्ता हो गया, गाजा खाजा मालपुआ, ये सब जो है बेचता हूँ। हर एक जगह जहाँ जो फेस्टिवल होता है वहाँ मैं लगाता हूँ, और गुजरात में आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैं यहाँ इधर आया हूँ, लेकिन अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लोग ले रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार शर्मा, और हम लोग राजस्थान से आए हमारी टीम के साथ, और हम लोग यहाँ मिनिस्ट्री की तरफ से आते रहे। पहली बार हमारा गुजरात का हो रहा है, और हम लोग जो है राजस्थान की कड़ी कचौरी, प्याज कचौरी, मावा कचौरी, मिक्स पकोड़े, और आपका दाल बाटी चूरमा, मूंग दाल का हलवा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो लेके आते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है, पहली बार के हिसाब से जिस हिसाब से है उस हिसाब से अच्छा है। जब तक लोगों को पता चलेगा तो आगे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल सकता है। नागरी से आए हैं, दिल्ली सीताराम बाजार चांदनी चौक से। चांदनी चौक? हाँ जी सर, ये वहाँ की सबसे फेमस चीज है। क्या नाम है? मिक्स फ्रूट रोलर आइसक्रीम। इसमें सभी मिक्स फ्रूट होते हैं, मैंगो, पपाया, चीकू, वाटरमेलन, ऑरेंज, सभी नेचुरल फ्रूट होते हैं, क्रीम और दूध से बनी हुई होती है।
व्हाइट राइस, लेमन राइस, डोसा, पापड़, अचार, दाल, पूरा मिला के 4300 रुपए। अच्छा खाना है। खाना। वेलकम टू केरला। मेरा नाम फैसल, मैं केरला से आया। मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर ट्राई करेगा। हम लोग 15 दिन के लिए आए इधर। वो अपना ग्रुप नेस्वी बुला के इधर के। अच्छा चलता है, फिर भी ठंडा है। मार्केटिंग प्रॉब्लम है, हम लोग का सामान बराबर नहीं मिलता है, केला नहीं मिलता है और कोकोनट मिल्क दूध नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है। तो ये ब्रेड पकौड़ा पनीर वाले हाँ और ये समोसे हैं दिल्ली के। हमारे 2 आइटम है यहाँ पर, दिल्ली के स्टोर लगे। आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर है, दिल्ली ओखला फेस्टो में लगाते हैं। मैंने भारतीय कल्चर जो कि अलग अलग गांव में खाना खाया जाता है वो लगा हुआ है यहाँ से, भारत सरकार द्वारा। और कैसा रहा, यानी यहाँ आज तो पब्लिक दिखाई दे रहा है, अंधेरा तो पब्लिक दिखाई नहीं देता, लेकिन जो टोकन सरकार देते हैं उसके भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन उम्मीद है कि आगे अच्छा रहेगा। अभी पहली बार है, पहली बार ये भारत पर्व लग रहा है, अगले बार और अच्छा होगा और अगले साल हम लोग और चाहेंगे अच्छे हो। राजस्थान जयपुर से आए हैं और ये यहाँ पे इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और हम फैब्रिक पेंट लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम साड़ी, जीन्स वगैरह अलग अलग फैब्रिक पे हमने अपनी डिजाइन वगैरह कस्टमाइज करवाई। अच्छा, तो रेस्पॉन्स कैसा रहा है? रेस्पॉन्स ठीक है, यहाँ पे इतना भी नहीं है बट ठीक है, अच्छा है रेस्पॉन्स। अच्छा, ओके। मैं महेश्वर से आया हूँ, खरगोन जिले से, और हम महेश्वरी साड़ी बनाते हैं और हम ये साड़ियाँ सब लेकर आए हैं वीवर सर्विस सेंटर के द्वारा। ओके ओके। और ये हैंडलूम के साड़ियाँ हैं? ये पूरा हैंडलूम का साड़ियाँ है, हम खुद बनाते हैं, हम खुद वीवर हैं। ओके, तो एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं और प्लेन साड़ी को बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। मेरा नाम विजय दत्ता लुटलीकर है और ये क्राफ्ट का कोकोनट शेल हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, गोवा का हैंडीक्राफ्ट है। वो कोकोनट शेल जैसा पहला ऐसा रहता है, वो हम क्लीन करने के बाद अलग डिजाइन बनाते हैं। Maran